Hello everyone. So today class 12 chapter number 2, that is solution, and in solution we are going to study colligative properties. So as I've already told you, colligative properties are those properties which depend only on the number of solute particles. It does not depend on the nature of the solute particles. किस तरीके का है, थिक है, थिन है कि विस्कस है, इसके नेचर पे कोई डिपेंड नहीं कर, ये प्रॉपर्टीज नेचर पे डिपेंड नहीं करती. किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर प्रेजेंट है. So we have four kinds of colligative property. Number one is relative lowering of vapor pressure. Then elevation of boiling point, depression in freezing point, and fourth one is osmotic pressure. So one by one we are going to take these properties in detail. So the very first property is relative lowering of vapor pressure, that is RLVP. Let's see what this property is of solution. RLVP, relative lowering of vapor pressure. Now first of all, the question arises, what is vapor pressure, isn't it? The word itself says vapor pressure, the pressure of the vapor, right? We all know that if we take any kind of liquid, say water, so if we are taking water in this container, and this container is an open container, this is the water, what will happen? Vapors बनेंगे और उड़ जाएंगे, निकल जाएंगे इसमें से. तो क्या उसमें प्रेशर बनेगा? नहीं. Next we are going to take a closed container. That means we are taking a closed system. Then what will happen? कि यहाँ से जो है वाटर के वेपर्स बनेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे ऊपर ऊपर ऊपर. जब वेपर्स आएंगे तो ऑब्वियसली कोई भी गैस होगी तो उसका प्रेशर भी होगा, तो ये कुछ प्रेशर क्रिएट करेंगे. दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. आई होप it is clear that what vapor pressure is. The pressure of the vapor is called vapor pressure. Now let's see कि अगर हमारे पास कोई solution है, we take any solution and we have one solute again in a closed container. Say this is A. कोई भी liquid है. अब ये क्या करेगा? Vapors बनाएगा. और ये वेपर्स किसके होंगे? ये वेपर्स होंगे ए के. कंपोनेंट क्या है? ए. जितने मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है वो किसके हैं? ए के. ए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो ये वेपर्स जो बनेंगे वो किसके बनेंगे? ए के बनेंगे. तो प्रेशर कौन सा होगा? इसी का वेपर प्रेशर होगा. किसका वेपर प्रेशर? ए का. लेट्स से पी. तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो है पी. किसका है? सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स का. अब क्योंकि ए के ही मॉलिक्यूल्स है, प्योरली ए के, तो हम क्या लिख देते हैं? पी ए नॉट. नॉट हम यूज करते हैं when we are talking about only pure substance. So here we are talking about only A substance. So PA naught is the vapor pressure of A. Let's say there is another component B. Say if this is also having vapors, भाई ये भी जो है एक volatile है. The word is volatile. Volatile का मतलब क्या है? जो वेपर्स बनाता है उसको हम कहते हैं volatile. B भी volatile है, obviously ये भी वेपर्स बनाएगा. अगर ये वेपर्स बनाता है तो इसका क्या है? इसका अगेन प्रेशर होगा. प्रेशर क्या होगा इसका? से P. अब क्योंकि सिर्फ B मॉलिक्यूल्स का है तो इसमें क्या होगा? PB. अब ओनली प्योरली B का है इसलिए PB नॉट. क्लियर पॉइंट? A का वेपर प्रेशर क्या है? PA नॉट. B का प्रेशर क्या है? PB नॉट. What is that? Vapor pressure. Vapor pressure of purely A, vapor pressure of purely B. Say if we are combining these two components A and B to form a solution. अब यहाँ पे ये दोनों अलग अलग है ना, तो अगर हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, say this is solute and this is solvent, then what will happen? We get solution.
अब इस सॉल्यूशन में क्या है, ए है और बी है, दो चीजें हैं। अब हमें पता है कि जो वेपर्स बनते हैं दैट इज अ प्रोसेस कॉल्ड इवेपोरेशन. And what is evaporation? Evaporation is a surface phenomena. Surface phenomena का मतलब क्या है, जो surface पे molecules हैं, ये surface, ये तो हो गया अंदर बल्क में, ये जो है surface पे है, ठीक है, जो सबसे जो भी हमारा लिक्विड है उसके जो बिल्कुल ऊपर ऊपर वाले उसमें सरफेस पे होंगे उनको हम कहते हैं, वो जो है सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं. अब ये जो हैं ये इवेपोरेट होते हैं. इवेपोरेशन और बॉइलिंग में यही डिफरेंस है. बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग इज अ बल्क प्रोसेस, इवेपोरेशन इज अ सरफेस प्रोसेस, इसलिए ये बहुत स्लोली होता है, वेपर्स बनते हैं. अब यहाँ पे क्या है, ए का वेपर प्रेशर पी ए नॉट, बी का वेपर प्रेशर पी बी नॉट. अब यहाँ पे दोनों को हमने कंबाइन कर दिया. सरफेस के ऊपर ए के मॉलिक्यूल भी होंगे, बी के मॉलिक्यूल भी होंगे, कोई एक पैटर्न नहीं है, ए बी कुछ भी हो सकता है, ए के भी हो सकते हैं, बी के भी हो सकते हैं, सब ए बी कैसे भी पैटर्न बन सकता है. मॉलिक्यूल्स जो है सरफेस पे इस तरीके से आ गए. अब सरफेस पे आए जब, तो इनका भी वेपर्स बनेंगे. तो क्या ये वेपर, ये जो ए है या बी है या सॉल्यूशन का है, क्या ये वेपर प्रेशर पी ए नॉट होगा, और क्या ये वेपर प्रेशर पी बी नॉट होगा? इट विल नॉट बी द सेम, because this is in this container or in this closed system there are only A molecules, so we are saying the vapor pressure is PA naught. In this container or in this closed system only B molecules are there, so we are saying PB naught. When we combine these two, then what will happen? इस वेपर्स तो बनेंगे ए का भी, क्योंकि दोनों ही वोलेटाइल हैं, ए भी वोलेटाइल है, बी भी वोलेटाइल है. अब ए वोलेटाइल है और बी भी वोलेटाइल है, दोनों ही वेपर्स बनाएंगे. तो क्या पी ए नॉट, इसका जो सॉल्यूशन का पी ए है और ये पी ए नॉट बराबर होगा? नहीं. अभी यहाँ पे क्या था, सारे सरफेस पे मॉलिक्यूल्स ए के थे, तो ये तो अच्छा खासा इसका वेपर प्रेशर था. सेम हियर ऑल्सो. अब यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ बी के भी आ गए हैं, तो यहाँ का वेपर प्रेशर पी ए नॉट नहीं होगा, बल्कि पी ए नॉट से थोड़ा कम होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे वेपर्स जो बन रहे थे वो ए मॉलिक्यूल के बन रहे हैं. यहाँ पे सारे के सारे जो सरफेस पे, देखो सरफेस पे कितने, बी भी तो है ना साथ में, तो यहाँ पे क्या होगा, पी ए नॉट एंड पी बी, राइट. अब दिस इज व्हाट आवर वेपर प्रेशर इज. नाउ अब डिपेंड करता है कि वेपर प्रेशर, अब हमें ये देखना है कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है. से वी आर टॉकिंग अबाउट पी ए नॉट, प्रेशर कितना होगा वेपर्स का, भाई जितने वेपर्स बनेंगे. अब वेपर्स कितने बनेंगे, वेपर्स बनेंगे जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे. दैट मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi A. Mole fraction of A is, that will tell us the vapor pressure of A. In the same way, PB naught is directly proportional to chi B, right? भाई मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने भी हैं. अब उनमें से जो है कितना फ्रैक्शन है इसका ए का, या कितना फ्रैक्शन है टोटल में से बी का, दैट इज व्हाट वी कॉल मोल फ्रैक्शन. वी आर रिमूविंग द प्रोपोर्शनैलिटी साइन, सो पी ए नॉट इज इक्वल टू के chi A, पी बी नॉट इज इक्वल टू के chi B, राइट. अब अगर हम ये निकालते हैं पी ए सेम, कि इस जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर, से वी आर टॉकिंग अबाउट पी ए देन chi A देन पी बी नॉट इज इक्वल टू के chi B, राइट. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पी ए नॉट directly proportional to chi A. This is called Raoult's law. This is called Raoult's law. Raoult's law says that
the vapor pressure of any component is directly proportional to the mole fraction of that component in a solution. अब यहाँ पे ये तो हमारा चलो अलग अलग था कि ये ए मॉलिक्यूल्स हैं, ये बी मॉलिक्यूल्स हैं. अब यहाँ पे इसके अंदर ए भी है और बी भी है और दोनों ही वोलेटाइल है, दोनों ही वेपर्स बना रहे हैं. तो इस पूरे कंटेनर के अंदर या इस क्लोज सिस्टम के अंदर टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा? सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ हमने पढ़ा था. डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि टोटल वेपर प्रेशर दैट इज पीटी, दिस इज इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. अगर दो हैं गैसेस या दो जो कंपोनेंट है वो गैसेस बना रहे हैं, वेपर्स बना रहे हैं, तो उनका वेपर प्रेशर प्लस पी का वेपर प्रेशर, दैट इज व्हाट वी कॉल पीटी, दैट इज टोटल प्रेशर. और वी कैन से पी ए इज इक्वल टू K chi A plus K chi, right? So this is I've just given you the slight idea what vapor pressure is, and we have seen when we are taking two volatile components, then what would be the vapor pressure of any of that solution when both are volatile, right? So next we are going to study when we are taking one volatile substance and the other one non-volatile substance.